अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। My name is Dr. Tahir Ibrahim, और today our topic of discussion is myopathies. So probably this is my second or third class with you, right? So today we will be discussing myopathies, right? It's a medicine, internal medicine topic, और इसकी जो definition है कि what is myopathy, right? Myo, as you know, myo means muscle and pathy means something uh, non-physiological, that is pathological, right? So some pathology of the muscle or disease of the muscle is myopathy, but exact definition is that it's a neuromuscular disorder in which the primary symptom is muscle weakness due to dysfunction of the muscle fiber, right? I'll tell you the anatomy, right? This is the anatomy of our skeletal muscle. It is almost similar to smooth muscle, but there are a few differences, but mostly it is the same. So here you can see this is a bone, and the muscle, this is the cross section of the muscle, right? It's a muscle, skeletal muscle, and it is joined to the bone with the tendon. अब ये skeletal muscle के अंदर, as you see, this is surrounded. Muscle is surrounded the by a sheath of the fascia, which is called epimysium, right? Epimysium, right? So this is the sheath around the muscle. As you all know that muscles, ये जो छोटे छोटे से इसके अंदर से threads निकल रहे हैं, these are the muscle fibers, right? So these are the muscle fibers, which there are multiple muscle fibers, and the sheath around the muscle fiber is called the perimysium, right? Inside are many muscle fibers, and this is one muscle fiber which is extra plotted, and it is showing you that the structure of the muscle fiber, and here you can see that there are nuclei, right? इसके अंदर nuclei होते हैं muscle के अंदर. But the muscle is supplied with the blood, and there are capillaries around the muscle fibers, which provide the blood and nutrition to the muscle and take away the waste materials of the muscle. So, right? And so you all can hear me? Someone can tell me that if you can hear me? All right. Thank you, Aisha and Hafiza and Mariam. Thank you. Thank you, Zubair. Right. So this is the structure of the muscle fiber, और muscle fiber के अंदर myofibrils होते हैं, right? और myofibrils जो हैं उनके जो अंदर जो structures हैं इसके अलावा, और वो क्या चीज़ है? Sarcoplasmic reticulum, right? This is surrounded by a branch structure which is called the sarcoplasmic reticulum, और ये इसके अंदर आप देखें mitochondrions भी हैं, right? अब जैसे आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द एनर्जी प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री ऑफ आवर बॉडी. एटीपीज प्रोड्यूस करता है ये माइटोकॉन्ड्रिया. इसीलिए क्योंकि मसल्स जो है इनका काम है एक्टिव रहना, हर वक्त फंक्शन इनका रहता है. दैट्स व्हाई देयर आर अ लॉट ऑफ माइटोकॉन्ड्रियंस इनटू द इनसाइड दिस स्ट्रक्चर ऑफ द मसल फाइबर, राइट? सो अब अगर एक मायोफिब्रिल को हम ओवर ड्रॉ करें, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये ग्रीन और ब्लू स्ट्राइप्स हैं ऑल अराउंड द मसल फाइबर्स, ठीक है? और यहाँ पर इसका एक क्रॉस सेक्शन इन्होंने नीचे शो किया हुआ है, जिसमें ये इसका जो ब्लू पार्ट है और ये ग्रीन पार्ट है, राइट? सो इसके अंदर छोटे छोटे से मजीद धागे की तरह के या थ्रेड की तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिन्हें कहते हैं एक्टिन और मायोसिन, राइट? दीज आर द टू थ्रेड्स, और ये
एक्टिन है ब्लू और ये मायोसिन है, और ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं थ्रू दी क्रॉस ब्रिजेस। अब क्या होता है कि जब ये क्रॉस ब्रिजेस कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये दिस इज द जेड डिस्क, राइट। द जेड डिस्क ये होती है कि एक जो मायोफिब्रिल है वो दूसरे मायोफिब्रिल से सेपरेट होता है थ्रू दिस जेड डिस्क, और जब ये जेड डिस्क पुल होती है, यहाँ से ये दूसरा मायोफिब्रिल शुरू हो गया, जब ये जेड डिस्क पुल होती है तो क्या होता है कि ये मसल स्ट्रेच करेगा, और जब ये पुश होगी तो ये एक दूसरे के करीब आ जाएंगी दो जेड डिस्क, ठीक है। जब ये जेड डिस्क दूसरे के करीब आएंगी तो रिलैक्स हो जाएगा, जब दूर जाएंगी तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सही है। सो दिस इज दी बेसिकली इज दी structure of our muscle. Right. So जो आपकी डेफिनेशन है वो ये है कि मायोपैथी इज अ न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर इन व्हिच द सिम्टम्स आर द मसल वीकनेस ड्यू टू डिसफंक्शन ऑफ द मसल फाइबर। अब ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो डिजीज है ये इसका जो लेवल है वो क्या है, मसल फाइबर के लेवल पे ये प्रॉब्लम कॉज करती है। इट्स अ हेट्रोजिनस डिसऑर्डर। हेट्रोजिनस ये होता है जिसमें कि बहुत सारी किस्म की जिसकी टाइप्स बहुत सारी होती हैं और इसके फीचर्स वेरिएंट हैं डिफरेंट टाइप्स के। सो इट्स अ हेट्रोजिनस डिसऑर्डर एंड द मायोपैथीज। अब ये फर्दर बताया हुआ है कि ये किस किस चीज़ को अफेक्ट करती हैं। मायोपैथीज जो हैं क्यों होती हैं, बिकॉज देयर इज द प्रॉब्लम विद द मेटाबॉलिज्म ऑफ द स्केलेटल मसल, राइट। वो हम फर्दर देखेंगे कि क्या कॉजेज हैं। सो मेजर चंक ऑफ द कॉजेज इज मेटाबॉलिक कॉजेज। फिर चैनल जो होते हैं, आपको पता है कि एक्टिन मायोसिन फिलामेंट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। सो इसके लिए एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, राइट। और ये इसके लिए आपकी जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने के लिए सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, ये कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो इन एंड आउट मूव करते हैं मसल के, राइट, जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसीलिए अगर इन जिस चैनल्स के थ्रू ये मूव करते हैं इन एंड आउट, उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो फिर भी मायोपैथीज हो जाएगी। या तीसरी जो कॉज है वो ये है कि स्ट्रक्चर इसका जो है मसल फाइबर का, उसके प्रॉब्लम, तो ये फर्दर हम डिटेल्स इसकी देखेंगे आगे। नाउ द ओवरऑल वर्ल्ड वाइड इंसिडेंस ऑफ इनहेरिटेबल मायोपैथीज जो है दैट इज 14%, राइट। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इस टॉपिक में इनहेरिटेबल मायोपैथीज हैं जो कि माँ बाप से बच्चों में ट्रांसफ़र होती हैं, तो उसका इंसिडेंस 14% है। और बेसिकली जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी है जो एक टाइप है उसकी मायोपैथीज की, उसका जो इंसिडेंस है इट इज 63 पर मिलियन, यानी कि 10 लाख में से 63 लोग ऐसे होंगे जिनको के मस्कुलर डिस्ट्रोफी होगी, राइट। राइट। इसके अलावा जो इन्फ्लेमेटरी मायोपैथी जो अगेन एक टाइप है मायोपैथीज की, उसका जो इंसिडेंस है 5 to 10 पर 1 मिलियन है इसका जो है। अब ये जो मायोपैथीज हैं दे आर मोर कॉमन इन women, and corticosteroid myopathy is the most common of the endocrine myopathy, and endocrine disorder are more common in the female, right. सो जो कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स हैं ये बहुत कॉमनली यूज होते हैं, हम लोग अस्थमा के पेशेंट्स को दे रहे होते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट को दे रहे होते हैं, और बहुत सारी डिजीज हैं, कुछ स्किन डिजीजेस, सोरेसिस वगैरह है, बहुत सारी और डिजीज हैं जिसमें कि हम स्टीरॉइड यूज करते हैं। तो स्टीरॉइड मायोपैथी जो है इट इज मोस्ट कॉमन ऑफ द endocrine myopathy, right? The overall incidence is exactly not known. ये मैंने आपको बता दिया है कि मसल फाइबर का क्या स्ट्रक्चर है, एक्टिन मायोसिन फिलामेंट क्या होते हैं, जेड डिस्क क्या होती है, ठीक है जी। अच्छा, अब जो मसल फाइबर है ये आपने देखा है, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड का एक सेक्शन है, और ये इसके इंटीरियर हॉर्न है, राइट। सो इंटीरियर हॉर्न से
इंटीरियर हॉर्न सेल्स या मोटर न्यूरॉन उन्हें हम कहते हैं, वो निकलते हैं, राइट। सो एक जो एक्सॉन ऑफ द मोटर न्यूरॉन इन वन मोटर यूनिट, एक जो इंटीरियर हॉर्न सेल है वो जाके ग्रुप ऑफ द मसल फाइबर्स जो हैं उनको ये सप्लाई करता है, राइट। और ये डिपेंड करता है कि डिफरेंट मसल्स पे कि एक जो न्यूरॉन है वो कितने मसल फाइबर्स को स्टिमुलेट करेगा, ये मैं आगे आपको बताऊंगा। सो मोटर यूनिट ये होता है कि एक न्यूरॉन या इंटीरियर मोटर न्यूरॉन या जिसे हम मोटर न्यूरॉन भी कहते हैं, ये सप्लाई कर रहा होता है जो मसल फाइबर्स को। सो दिस होल थिंग इज कॉल्ड अ मसल मोटर यूनिट, राइट। और ये यहाँ पर ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है। यहाँ पर ये अगर आप देखें, ये इसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है। ये आ रहा है आपका न्यूरॉन, और ये उसके एंड्स हैं, और ये जाके मसल्स के अंदर लग रहे हैं, मायोफाइबर्स के अंदर लग रहे हैं, राइट। सो जब इलेक्ट्रिक करंट हमें पता है जनरेट होता है इनसाइड द न्यूरॉन्स, और वो आगे ट्रेवल करता है और वो जाके एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है मसल्स के अंदर, और फिर मसल्स जो हैं विद द हेल्प ऑफ सर्टेन इलेक्ट्रोलाइट्स, ये मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। सो दिस इज हाउ अ मसल फंक्शंस, राइट। ये मोटर यूनिट का मैंने आपको बताया। ये इधर मजीद अच्छी सी डायग्राम बताई है कि ये एक मोटर न्यूरॉन आ रहा है और ये इसके ब्रांचेस हैं, पोर्ट्स हैं, इसके पाँव हैं फॉर एग्जांपल। सो ये जाके ये एक मायोफिब्रिल को लग रहा है, ये दूसरे मायोफिब्रिल, ये 3, ये 4, ये 5। सो मसल फाइबर्स को ये लग रहा है, राइट। सो मसल फाइबर्स supplied by a motor neuron is called the motor unit. Can you hear me, all of you? आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो, कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम हुआ है? वो देखो बच्चे भी आ रहे हैं, आवाज नहीं आ रही है, नो वॉइस नो वॉइस। अब आवाज आ रही है आप लोगों को? पीछे कोई स्टूडेंट बैठा हुआ है? स्टूडेंट है? कौन है जो? ऑलराइट, राइट, थैंक यू। ओके जी, ये आज कोई इंटरनेट में प्रॉब्लम, आई एम सॉरी फॉर दैट। अच्छा, अब ये हमने देखना है कि जो मायोपैथीज हैं इसका हमने कैसे इसको डायग्नोज कैसे करना है, राइट। मोटर यूनिट का मैंने बता दिया कि मोटर यूनिट इज मेड अप ऑफ अ मोटर न्यूरॉन एंड ऑल द मसल सेल्स इट स्टिमुलेट, ठीक है। ये पूरा एक मोटर यूनिट है, ठीक है। ये इतने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यूनिट मसल फाइबर्स हैं जिनको ये सप्लाई कर रहा है, ठीक है। सो ये एक पूरा मोटर यूनिट है। इट वेरी इन साइज, यानी एक यूनिट जो है वो 12 को भी कर सकता है, 20 को भी कर सकता है, 2 को भी कर सकता है, डिपेंड। स्मॉल मोटर यूनिट किस मसल्स में होगा? एक्चुअली जहाँ पर हमें ज़्यादा प्रिसीजन रिक्वायर्ड होती है, जहाँ पर के स्मॉल मूवमेंट, फॉर एग्जांपल आप पियानो प्ले कर रहे हैं तो आपको एक प्रिसीजन जो है वो अपनी फिंगर्स की चाहिए, आपने वो करना है। इसी तरह जब आप बोल रहे हैं तो आपको प्रिसीजन चाहिए। सो इसलिए जो स्मॉल मोटर यूनिट होते हैं वो उसके जो उसका जो फंक्शन होता है वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है, ज़्यादा स्पेशलाइज्ड आप कह लें होता है। जबकि जो लार्ज मोटर यूनिट्स हैं, यानी कि एक न्यूरॉन जो है वो 20 या 40 मायोफिब्रिल को सप्लाई कर रहा है, तो वो ग्रॉस मूवमेंट के लिए है, बस वो उसको यानी कि मूवमेंट देगा, बट कोई प्रिसाइज किस्म की मूवमेंट नहीं होगी, ठीक है जी। सो ये है कि स्मॉल मोटर यूनिट कहाँ पाए जाते हैं और लार्ज मोटर यूनिट, ये आगे मैं आपको फर्दर भी बताऊंगा। The numbers of cells within a motor unit, it determine the degree of movement when the motor unit is stimulated. वही वाली बात है कि जितनी प्रिसाइज किस्म की मूवमेंट होनी है उतना ही वो यूनिट जो है वो छोटा होगा, और जितनी अनप्रिसाइज या जिसे कि आप ग्रॉस मूवमेंट कहते हैं जो है वो मतलब अगर आप चल रहे होते हैं तो आपके जो आपका गैस्ट्रोक्नीमियस जो है वो बस मूव कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन जब आप पियानो बजा रहे होते हैं तो आपकी जो फिंगर्स हैं वो एक खास रिदम में मूव कर रही होती हैं,
ठीक है। सो ये डिफरेंस है कि छोटे और बड़े मायोफिब्रिल्स मोटर यूनिट्स कहाँ कहाँ होते हैं। और मसल टोन जो है इट इज एसिंक्रोनस स्टिमुलेशन ऑफ द रैंडम मोटर यूनिट। अच्छा, अब मसल की हमारी टोन क्यों होती है हमारे हर वक्त? तो मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे होते, लेकिन जब अपने मसल्स को फॉर एग्जांपल ये मसल को आप जब पुश करके देखते हैं तो एक टोन आती है आपको उसके अंदर। सो ये एक कांस्टेंट किस्म की जो स्टिमुलेशन है, या जिसे कि आप एक कह सकते हैं कि बेस लाइन किस्म की स्टिमुलेशन है, वो रहती है सारे मोटर यूनिट्स के अंदर। सो वो मोटर टोन उससे पैदा होती है। ठीक है जी। सो मोटर यूनिट का ये कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब ये है क्लासिफिकेशन ऑफ द मसल फाइबर। मसल फाइबर्स बेसिकली 4 टाइप्स के इसमें बताए हुए हैं। टाइप 1 है, टाइप 2A है, टाइप 2X है और टाइप 2B है। ठीक है जी। ये जो टाइप 1 वाले हैं इनकी कॉन्ट्रैक्शन टाइम इनका स्लो होता है, मोटर यूनिट इसके स्मॉल होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया। और हाई इसकी रेजिस्टेंस टू फटीग होती है, यानी कि जब आप अगर 2 घंटे तक भी पियानो बजाते रहेंगे तो आपके हाथ जो हैं वो इतना नहीं थकेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप 15 मिनट जॉगिंग करें या वॉक करें तो आपके जो गैस्ट्रोक्नीमियस है वो थक जाएगा। सो इसलिए जो प्रिसाइज किस्म के मूवमेंट वाले होते हैं उनका फटीग का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, यानी कि वो बहुत जल्दी फटीग नहीं होते हैं। एक्टिविटी एरोबिक एक्टिविटीज़ के लिए ये यूज़ होते हैं बेसिकली। ठीक है, और इट कैन वर्क फॉर आवर्स। और इसका जो इसका माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी है, कैपिलरी डेंसिटी है, ऑक्सीडेटिव कैपेसिटी, ग्लाइकोलिटिक, सॉरी ये 3 जो हैं ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं। सो ये काफ़ी हाई किस्म की वो जो है वो परफॉर्मेंस देते हैं। ठीक है, तो ये डेंसिटी इनकी ज़्यादा होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, कैपिलरी। मेजर स्टोरेज फ्यूल, ये किस चीज़ को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं? ये वाले जो टाइप 1 वाले हैं ये ट्राइग्लिसराइड को एज ए फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, ये याद रखना। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। टाइप 2 वाले जो हैं वो मॉडरेटली फास्ट होते हैं। ये इंटरनेट कनेक्शन फिर चला गया। अच्छा, आ रही आवाज़ आप लोगों को मेरी? कैन यू हियर मी? जी, नाउ यू कैन हियर मी? ओके। अच्छा, आप लोगों को जब आवाज़ आना बंद हो तो आपने मुझे बता देना है फौरन। ठीक है, राइट। थैंक यू नूरुल हुदा। राइट, सो ये हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमने जो है वो कैसे इसको डायग्नोज कैसे करना है। नेक्स्ट इसका ये है। ठीक है जी। जी, अब आ रही है ना आवाज़? अच्छा, चलें हम इसको इधर से ही करते हैं। राइट, ये डिफरेंट मसल फाइबर टाइप्स हैं। इसमें जो ये जो टाइप 2 हैं मॉडरेटली फास्ट हैं, फिर ये फास्ट हैं और फिर ये वेरी फास्ट हैं। ठीक है, और ये इनके सारे फीचर्स हैं कि ये कैसे जो है वो फंक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, अब सिवाय टाइप 1 के बाकी सारे के सारे सीपीके ग्लाइकोजन को फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। सो दीज आर दी मसल फाइबर। अच्छा, अब मायोपैथीज का जो क्लिनिकल वैल्यूएशन है वो कैसे करनी है, यानी कि इसकी सिम्टम्स क्या है? सबसे पहले तो मसल वीकनेस इज द सिम्टम। और ये याद रखें कि मसल वीकनेस जो है वो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द प्रॉक्सिमल मसल्स एंड ग्रेजुअली ये डिस्टल मसल्स।
प्रॉक्सिमल से मुराद है कि ये आपका ये प्रॉक्सिमल पार्ट है, फिर ये डिस्टल आते आते हैंड डिस्टल हो गया, ठीक है। तो प्रॉक्सिमल मसल्स को इन्वॉल्व करती है। फटीग इज़ अ फिनोमिना कि आप शुरू शुरू में आपके पास थोड़ी पावर होती है, जब आप मसल को ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसके बाद वो फटीग हो जाता है। अच्छा, फिर मसल पेन, क्रैम्प्स और स्टिफनेस, ये भी अगेन एक चीज़ है जो कि इसके क्लिनिकल फीचर्स में आती है। अभी अभी तो आ रही है आप लोगों को आवाज़ मेरी? कैन एनीवन कंफर्म आवाज़ आ रही है? अभी तो आ रही है ना? ओके ओके, चले, आई थिंक वीडियो ऑफ करते हैं हम, तो फिर आती है आवाज़। ओके, राइट। सो क्लिनिकल एवेल्युएशन, राइट, इसमें आपकी प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस है, माया फटीग है, डिफ़िकल्टी इन राइजिंग फ्रॉम द चेयर। जब आप चेयर से उठते हैं, राइट, सो उसके लिए आपको अपने ग्लूटियस मसल इस्तेमाल करने होते हैं, जो कि प्रॉक्सिमल मसल्स हैं, ठीक है। सो इसीलिए डिफ़िकल्टी इन राइजिंग फ्रॉम द चेयर, फ्लोर और टब। फिर स्टेयर्स चढ़ने में, जब आप स्टेयर्स चढ़ते हैं, अगेन यू यूज़ योर प्रॉक्सिमल मसल्स ऑफ द लोअर लिम्ब। इसी तरह ओवरहेड टास्क जो का मतलब ये होता है कि जब आप अपना जो हाथ है उसको ऊपर उठाते हैं, सो आपके जो डेल्टाइड और ये जो आपके पेक्टोरल्स वगैरह हैं, ये इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, जो कि प्रॉक्सिमल मसल्स हैं, राइट। सो ओवरहेड टास्क में फॉर एग्जांपल कंघी करने में मसला होगा, कपड़े पहनने में मसला होगा। अच्छा, फिर समटाइम रेस्पिरेटरी मसल्स भी इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से डिस्निया हो सकता है, समटाइम रेस्पिरेटरी अरेस्ट वगैरह में भी पेशेंट जा सकते हैं। बल्बर वीकनेस, बल्बर वीकनेस क्या होती है? बल्बर वीकनेस ये होती है कि आपका जो स्पीच है, आपकी जो स्वॉलिंग है, आपकी जो ऑकुलो मोटर यानी विजन और फेशियल मसल्स हैं, इनकी इनके मसल्स अगर इन्वॉल्व हो जाएं तो इनकी भी वीकनेस हो जाती है, जिसकी वजह से स्पीच, आपको डिस्फेजिया होगा, होर्सनेस हो सकती है, डिस्फेजिया हो सकता है, खाना अंदर निकलने में प्रॉब्लम, आपकी आईज का मसला हो सकता है, नज़र नहीं आएगा, फेशियल मसल्स की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। फटीग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मायोपैथीज। मसल पेन जो है और क्रैम्प्स और स्टिफनेस, ये भी चीज़ें हैं जो कि इसके साथ होती हैं, ठीक है। पैरेस्थीसिया और डिस्थीसिया, ये कि एबनॉर्मल सेंसेशंस आपको आने लगती हैं, एबनॉर्मल सेंसेशंस, और तो उसकी वजह से पेशेंट जो है वो बहुत अनकंफर्टेबल फील करता है, ठीक है। राइट, फिजिकल एग्जामिनेशन में आपने सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेट करना है, क्वांटिफाई करना है कि कितनी वीकनेस हो रही है और कितने जो हैं वो मसल की पावर क्या है। फिर मसल का बल्क मैयर करना है, जो कि इम्पोर्टेंट होता है। कुछ इसकी टाइप्स ऐसी हैं जिसमें कि मसल का बल्क चेंज हो जाता है, राइट। ओके, देन आपने फटीग को एलिसिट करना है, मसल टोन देखनी है, रिफ्लेक्सेस चेक करने हैं, सेंसेशंस देखनी है। अब दिस इज द मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ मायोपैथी। दो टाइप्स की हैं, इनहेरिटेड और एक्वायर्ड है। इसमें मेजर जो बड़ी बड़ी टाइप्स हैं उसमें आपकी कंजेनिटल मायोपैथीज हैं, इन्फ्लेमेटरी है, मस्कुलर डिस्ट्रोफीज हैं, मेटाबॉलिक हैं, एंडोक्रीन है, मायोटॉनिक सिंड्रोम है और ड्रग इंड्यूस्ड है, ठीक है जी। तो ये इसमें इन्फ्लेमेटरी में पॉलीमायोसाइटस, रुमेटोमायोसाइटस, इंक्लूजन बॉडी मायोसाइटस, वायरल इन्फेक्शन, जितनी भी वायरल इन्फेक्शन है वो इन्फ्लेमेशन कॉज करती है। सो दीज आर द इन्फ्लेमेटरी कॉजेज ऑफ मायोपैथी।
मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज बेसिकली ये एक ग्रुप ऑफ मायोपैथीज हैं जो कि ऑटोसोमल या एक्स लिंक जो है वो इसका जो प्रॉब्लम होता है वो आपके एक्स क्रोमोसोम पे, यानी कि एक्स से मुराद है सेक्स क्रोमोसोम, या फिर आपके जो ऑटोसोम्स हैं उन पे होता है। सो ये बेसिकली एक्स लिंक भी हो सकती हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट भी हो सकती हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव भी हो सकती हैं। इसमें लिम्ब गर्डल है, फेशियो स्कैपुलो हेमरल है, स्कैपुलो पेरोनियल है, डिस्टल जिसे कि विलैंडर्स डिस्ट्रॉफी कहते हैं, वो बेसिकली उसकी जो टाइप्स हैं वो इस कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, मायोटॉनिक सिंड्रोम जो है उसमें मायोटॉनिक डिस्ट्रॉफी आती है। ठीक है, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है, इनहेरिटेड है ये। फिर शॉर्स जैम्पल, ये एक टाइप है जो कि अगेन मायोटोनिया के साथ प्रेजेंट करती है। ठीक है, सो ये दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट कॉजेज। कंजेनिटल वाली में सेंट्रल कोर डिजीज, ये मैं आपको आगे बताऊंगा क्या होती है। फिर नीमालिन मायोपैथी, मायोट्यूबुलर मायोपैथी, या फाइबर टाइप डिस्प्रपोर्शन। ठीक है जी, ये टाइप्स हैं जो कि कंजेनिटल की हैं। मेटाबॉलिक में ग्लाइकोजेनोसिस, ये एक टाइप है। फिर माइटोकॉन्ड्रियल प्रॉब्लम्स की वजह से होती है, वो भी एक टाइप है मेटाबॉलिक की। फिर पीरियोडिक पैरालिसिस, ठीक है, ये बार बार जो है बंदे को पैरालिसिस हो जाता है, ठीक है, और फिर ठीक भी हो जाता है। फॉर एग्जांपल फेमिलियल पीरियोडिक पैरालिसिस। तो ये मेटाबॉलिक कॉजेज हैं। एंडोक्रीन में सबसे इंपॉर्टेंट थायराइड, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म बोथ जो हैं दे कैन कॉज मायोपैथीज। पैराथायराइड की भी जो डिजीजेस हैं हाइपर एंड हाइपो वो कॉज कर सकती हैं। इसी तरह एड्रीनल्स जो हैं या कुशिंग्स की वजह से हो सकता है, पिट्यूटरी प्रॉब्लम की वजह से भी मायोपैथी हो सकती है। फिर कुछ ड्रग इंड्यूस या टॉक्सिक हैं, वो हम आगे देखेंगे क्या क्या कॉज होती है। ठीक, नाउ द मस्कुलर डिस्ट्रोफी इज द ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स, हेरिडिटरी होती हैं, और इसमें डिफरेंट फिनोटिपिक और जीनोटिपिक फीचर्स होते हैं। यानी कि ये एक ग्रुप है जिसमें कि ये 1 2 3 4 5 टाइप्स हैं इसकी, लेकिन इसकी जो पेशेंट की फिनोटाइप, इनके उसकी जो अपीयरेंस है पेशेंट की वो भी डिफरेंट है, और जेनेटिक फीचर्स यानी कि जो इसमें जीन की एबनॉर्मेलिटीज हैं वो भी डिफरेंट हो। सो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो डिस्ट्रोफिनोपैथीज है। डिस्ट्रोफिन एक आप समझें कि प्रोटीन है जो कि मसल्स के अंदर होता है, और इसकी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसे डिस्ट्रोफिनोपैथी कहते हैं। और इसमें ड्यूशेन्स और बेकर्स, ये दो टाइप्स हैं जो कि इस कैटेगरी में फॉल करती हैं। ठीक है, फिर इसमें मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में FSH मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, या जिसको हम कहते हैं फेशियो स्कैपुलो ह्यूमरल, राइट। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हैं वो मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज हैं। ठीक है, इसके अलावा एमरी ड्रेफस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, लिम्ब गर्डल और मायोटॉनिक। सो ये 5 टाइप, 1 2 3 4 5, ये 5 टाइप हैं जो कि बेसिकली मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के अंदर आती हैं। ठीक है जी, अब हम ड्यूशेन को डिस्कस करेंगे। ड्यूशेन जो है इट इज आल्सो कॉल्ड सूडो हाइपरट्रॉफिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इसको सूडो हाइपरट्रॉफिक क्यों कहते हैं? क्योंकि जो मसल का बल्क है वो बहुत बड़ा हो जाता है, उसके अंदर फैट डिपॉजिट होती है, एक्चुअल जो मसल मास है वो गायब हो जाता है। इसलिए लगता है ऐसा कि मसल बहुत मोटा हो गया, तो लेकिन एक्चुअली हुआ नहीं हुआ था उसके हाइपरट्रॉफी, तो इसीलिए इसको सूडो हाइपरट्रॉफिक कहते हैं। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, डिस्ट्रोफिन जो मैंने आपको बताया है वो डेफिशिएंट होता है इसके अंदर, और इसका जो इंसिडेंस है वो 3500, 1 in 3500 मेल बर्थ्स में ये इसका इंसिडेंस है। इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं कि ये बर्थ पे प्रेजेंट होता है, लेकिन 3 से 5 साल की उम्र में जाके ये एविडेंट होता है। और एक गावर्स मैनूवर है जो कि इसके लिए बड़ा डायग्नोस्टिक है। उसमें क्या होता है कि अगर आप देखें तो ये बच्चा जो है उसको ये मायोपैथी है, लेकिन इसको अगर आप खड़ा होने के लिए कहेंगे तो ये पूरी सही तरीका से खड़ा नहीं हो सकता। ये सबसे पहले ये करेगा कि ये अपने दोनों हाथ नीचे लगाएगा, ठीक है, और ये इस तरह करके एक पूरी ट्राइंगल बना देगा अपनी पाँव से, और ये बेस है, और ये प्रोन पोजीशन से खड़ा होगा, उल्टा होगा सबसे पहले, ठीक है, उल्टा होगा,
फिर अपने हाथ जो है वो दोनों नीचे लगाएगा, फिर अपनी इधर से टांगे तो इसकी ऑलरेडी नीचे है, ये एक ट्राइंगल बनाएगा, ये फॉर्म द ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल के बाद जब ये ऊपर खड़ा होने लगेगा तो ये अपने घुटनों को पकड़ लेगा, ठीक है जी। घुटनों को पकड़ के फिर अपने थाइस को पकड़ेगा और थाइस को पकड़े पकड़े खड़ा हो जाएगा, ठीक है। सो दिस सेड के जी ही क्लाइंब ऑन हिज ओन थाइस टू स्टैंड अप। तो दिस इज द गावर्स मैनूवर। ये जब आप देखेंगे तो ये ड्यूशेन हाइपरट्रॉफी का एक फीचर है। इस पिक्चर में डिस्ट्रोफिन के बारे में बताया गया है कि डिस्ट्रोफिन क्या होता है। फिर गायब हो गई आवाज। सो इसमें जॉइंट कॉन्ट्रैक्चर्स होते हैं, होता है जो वर्बल कॉलम है इसका लेटरली रुक जाता है। फिर इसके अलावा क्यों होते हैं कि रिकरेंट पल्मोनरी इन्फेक्शन और एस्पिरेशन निमोनिया, ठीक है। और 2/3 सेकेंड और थर्ड डिकेड में अगर कोई पेशेंट पहुंचता है तो उसको फिर रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज दी बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। और ये मसल्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं इसमें। देखिए आप, ये आपके चेस्ट के मसल्स हैं, ये आपके प्रॉक्सिमल मसल्स हैं। डिस्टल की भी स्पेयरिंग होती है इसमें, डोमिनल मसल्स की भी स्पेयरिंग होती है। दिस इज दी बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इट्स एन एक्स-लिंक्ड डिसऑर्डर और ये लेस स्वेयर होता है एज कम्पेयर टू ड्यूशेन, ठीक है। और इसमें भी प्रोटीन जो है वो डेफिशिएंट होती है, उसमें एब्सेंट होती है, इसमें डेफिशिएंट होती है। और इसका इंसिडेंस जो है बीएमडी बेकर मस्कुलर डिस्ट्रोफी का वो 5 in 1 लाख है। जैसे क्लिनिकल फीचर में वेस्टिंग और जो कि रिजेंबल करती है ड्यूशेन को, और प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटी। सबसे पहले लोअर एक्सट्रीमिटी इसमें अफेक्ट होती है और इसका थोड़ा सा लेट ऑनसेट होता है, 5 से 15 साल की उम्र में ये ऑनसेट होता है। थर्ड टू फोर्थ डिकेड तक भी कुछ पेशेंट हैं जो कि ठीक रहते हैं और फिर उसके बाद उनको ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है, यानी लेस सीवियर फॉर्म है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। एंड पेशेंट में सर्वाइव टिल 4 to 5 इनकी लाइफ थोड़ी ज़रा लंबी होती है और इसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो भी सेम होती हैं एज। अच्छा, एफएसएच जो है फेशियो स्कैपुलो हेमरल डिस्ट्रॉफी, ये एक थर्ड मोस्ट कॉमन है आफ्टर ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एंड मायोटोनी, ठीक है। और इसका जो इंसिडेंस है वो 3 से वेरिएबल है, यानी कि 3 ईयर्स पे भी प्रेजेंट कर सकता है, 44 ईयर्स पे वेरिएबल है इसका, ठीक है जी। इसकी प्रेवलेंस 20,000 इन 4,50 1 in 20,000 to 1 in 4,55। ये इसका इंसिडेंस भी बड़ा वेरिएबल है। सो इट्स अ डिजीज विच इज अनप्रिडिक्टेबल। ये बंदा जो है वो उसकी जो एज है वो 44 तक भी जाता है, लेकिन 3 साल की उम्र में भी ये प्रेजेंट कर सकता है। इसी तरह इसका बहुत ज़्यादा कॉमन भी हो सकता है, बहुत लेस भी हो सकता है। ऑटोसोमल डोमिनेंट लिंक है और ये क्रोमोसोम नंबर 4 और 35 इनके दरमियान में कोई एक्सचेंज होती है क्रोमोसोम के एक पार्ट का, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। इसका इंसीडियस ऑन है और इसकी जो अब आ रही है आवाज आपको? अभी आवाज आ रही है बच्चों? ओके, अच्छा। सो ये एक लिम गर्डल टाइप की है, जिसमें एक टाइप है इसकी जिसमें कि आप देखें कि ये एक
दो टाइप्स की है, इसमें ऑटोसोमल डोमिनेंट भी होता है जिसको कि हम टाइप 1 लिम्ब गर्डल कहते हैं, और टाइप 2 जो लिम्ब गर्डल है उसमें ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। इसकी जो प्रेवलेंस है वो भी 8.1 इन 1 मिलियन है, और इसके क्लिनिकल फीचर्स में ये है कि लोअर लिम्ब या पेल्विक गर्डल वीकनेस होती है, ठीक है, और लेटर फिर अपर लिम्ब और स्कैपुलर विंगिंग होती है, ठीक है। सो दिस इज द लिम्ब गर्डल टाइप ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इसमें फिर फेशियल और एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, सो स्पेयर होते हैं, ठीक है। डायाफ्राम जो है उसकी वीकनेस होती है जिसकी वजह से डिस्निया हो सकता है, और कार्डिक एब्नॉर्मेलिटीज हो सकती हैं जिसमें कि आगे मैं आपको बताऊंगा जो है वो कंडक्शन डिफेक्ट्स हो सकते हैं, मायोपैथी कार्डियोमायोपैथीज हो सकती हैं, ठीक है। दैट इज अनदर टाइप ऑफ okay, so this is limb girdle, right? अच्छा, अब मायोटॉनिक डिस्ट्रोफी जो है ये अगर आप देखें तो एक बंदा है जिसको मायोटॉनिक डिस्ट्रोफी है, और इसमें आपको डिफरेंट फीचर्स नज़र आ रहे हैं जिसमें कि जो है वो बाल्डनेस होती है, ठीक है जी, और मायोटोनिया मसल की टोन बहुत ज़्यादा होती है, डिसआर्थरिया डिस्फेजिया होता है, फ्रंटल बाल्डनेस होती है, टोसिस, एट्रोफी ऑफ द टेम्पोरेलस, और इसकी जो टिपिकल अपीयरेंस है उसको कहते हैं ग्रे हाउंड। जो एक हाउंड जो है वो एक शिकारी कुत्ते को कहते हैं, और उसकी जो उसका जो फेस है वो बड़ा टिपिकल किस्म का, के नीचे से दबा हुआ होता है, ऊपर से जरा थोड़ा सा ब्रॉड होता है। तो दिस इज दी ग्रे हॉर्न और हैचेड फेस अपीयरेंस से कहते हैं। और एक वार्म अप फिनोमिना इसमें होता है इन पेशेंट्स में, जिसमें कि आफ्टर अ पीरियड ऑफ रेस्ट डिक्रीज विद कंटिन्यूइंग एक्सरसाइज। इसका जो मायोटोनिया है वो जैसे जैसे वो पेशेंट एक्सरसाइज करता है सो उसका मायोटोनिया कम होता रहता है। सो इसको कहते हैं हम वार्म अप फिनोमेना, ठीक है। ये इन पेशेंट्स में बड़ा टिपिकल होता है, और इसकी जो इनहेरिटेंस है वो ये होती है कि क्रोमोसोम नंबर 19, 13 और 53 ये तीन हैं जो कि इन्वॉल्वमेंट होते हैं, और इसमें मायोटोनिक डिस्ट्रोफी प्रोटीन काइनेज, ये एक प्रोटीन है जो कि ये मिलके बनाते हैं, उसकी फिर डेफिशिएंसी होती है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम मायोटोनिक डिस्ट्रोफी का होता है, ठीक है। अब कुछ सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट होती है मायोटोनिक डिस्ट्रोफी में, वो क्या क्या होती है? स्मूथ मसल्स जो हैं, कैन यू हियर मी मरियम? आवाज आ रही है आप लोगों को भी? स्टूडेंट्स कैन यू हियर मी? ओके, ठीक है। फिर इसी तरह ओके ओके, आई एम सॉरी, आज ये कोई इंटरनेट का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बड़ा मसला हो रहा है, बट एनीवे अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ ना आई हो तो यू कैन नोट डाउन माय मोबाइल नंबर, ठीक है, एंड यू कैन कॉन्टेक्ट मी लेटर, ओके। आई विल टेल यू माय मोबाइल नंबर एट द एंड ऑफ द लेक्चर, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुई है। अच्छा, हार्ट में कार्डियोमायोपैथीज होती हैं, कंडक्शन डिफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, ये मायोटोनिया डिस्ट्रोफी के साथ सिस्टमिक इफेक्ट्स। इसी तरह लंग में हाइपो वेंटिलेशन होती है, और डायफ्रैग्मेटिक इन्वॉल्वमेंट की वजह से जो है वो स्लीप एपनिया सिंड्रोम, एस्पिरेशन निमोनिया, और ये सारी चीज़ें हो सकती हैं लंग्स में, ठीक है। ब्रेन में इसी तरह बिहेवियरल और कॉग्निटिव एबनॉर्मेलिटीज़ हो जाती हैं, ड्यूशन ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मायोटोनिया डिस्ट्रॉफी का टाइप 1 में, ठीक है। और एंडोक्रीन में टेस्टिकुलर ट्यूबुलर एट्रोफी होती है, इम्पोटेंस हो सकती है, इनफर्टिलिटी, डायबिटीज़ मेलाइटस एंड हाइपोथायराइडिज्म। सो ये एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स जो हैं मायोटोनिया डिस्ट्रोफिका में होती हैं इन एडिशन टू दी मस्कुलर प्रॉब्लम। इसी तरह आईज में दे कैन हैव प्रीमेच्योर कैटरेक्ट या टोसिस हो सकता है, ठीक है।
और स्किन में प्री मेच्योर बाल्डिंग, ये बहुत ज़्यादा उनकी जल्दी से बाल गिर जाते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट, कंजेनिटल मायोपैथीज जो हैं वो क्या होती हैं? दिस इज़ अ हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ नॉन प्रोग्रेसिव और स्लोली प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर्स। ठीक है, ये बहुत स्लोली प्रोग्रेसिव होती हैं और या यूजुअली प्रेजेंट प्रोग्रेस नहीं करती हैं। दे आर नॉट कंसिडर्ड एंड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नहीं कहते इनको हम, सो बट दे आर कैटेगराइज इन अ डिफरेंट कैटेगरी कॉल्ड दी कंजेनिटल मायोपैथीज। ठीक है, इसमें फिर पेशेंट जो है उसकी प्रेजेंटेशन ऐसे होती है कि वो प्रेजेंट होता है ये न्यूनेटल पीरियड में, लेकिन दे यूजुअली प्रेजेंट विद अ डिलेड माइलस्टोन। मोटर माइलस्टोन जो हैं वो डिलेड हो जाते हैं और इसकी टाइप्स जो हैं वो ये 4 हैं। बट इतना इसके इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अगर आपने नोट करना हो तो दिस इज़ द मायोपैथी विद द प्रोटीन एक्युमुलेशन, myopathy with the cores, myopathy with the central nuclei and myopathy with fiber size variation। ये 4 टाइप्स हैं जो कि कंजेनिटल मायोपैथी की होती हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब व्हाट इज दी सेंट्रल कोर मायोपैथी? अब ये इसकी एक टाइप मैंने आपको बताई थी, सेंट्रल कोर कोर, ये वाली सेंट्रल कोर मायोपैथी वो क्या होती है? उसमें ये होता है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है। ठीक है जी, और एक राइनोडाइन रिसेप्टर R1 है, जो है रिसेप्टर एक होता है जिसकी म्यूटेशन होती है। ठीक है ना, और दे आर दीज पीपल जिनमें कि सेंट्रल कोर मायोपैथी है, दे आर एट इंक्रीज रिस्क फॉर मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। इनको जल्दी से मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया हो जाता है। ठीक है, इनकी प्रेजेंटेशन हाइपोटोनिया के साथ प्रेजेंट करते हैं, मस्कुलर बल्क रिड्यूस होता है और सिमेट्रिकल वीकनेस होती है, और वीकनेस भी इनकी वेरी करती है और प्रॉक्सिमल मसल्स को अफेक्ट कर सकती है और लोअर लिम्ब के मसल को, प्रीडोमिनेंटली लोअर लिम्ब एंड प्रॉक्सिमल मसल्स। ठीक है, द मोटर माइलस्टोन्स डिलेड होते हैं, दे आर एबल टू वॉक बाय द एज ऑफ 3 to 4 ईयर्स पे ये चलना शुरू कर देते हैं। CNS एब्नॉर्मलिटी कोई नहीं थी। अगर इसकी मसल बायोप्सी करें तो आपको कैरेक्टरिस्टिक कोर्स नजर आते हैं। अब ये कोर्स क्या है? ये आप देखें कि एक बच्चे का मसल है, ये एक बड़े का मसल है। इसमें आपको ये देखें कि ये न्यूक्लियाई नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इस जगह पर ये जो आपको सेंटर में बिल्कुल वाइट वाइट एरिया नजर आ रहे हैं, इसे हम कोर कहते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चरल ऑल्ट्रेशंस होती हैं ये, और दे आर विद इन द सेंटर ऑफ टाइप 1 मसल फाइबर। टाइप 1 मसल फाइबर के अंदर ये कोर्स बन जाते हैं। ठीक है, एंड दीज कोर आर सिंगल सेंट्रली लोकेटेड एंड सर्कुलर। ये देखिए आप, ये वाले जो वाइट वाइट है, तो दिस इज द सेंट्रल कोर मायोपैथी। अच्छा, अब नीमालीन मायोपैथी क्या होती है? नीमालीन मायोपैथी में ये इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। नीमा इज मीन अ थ्रेड, सो इसमें ये कैरेक्टरिस्टिकली जब आप बायोप्सी करते हैं तो आपको ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मसल्स के अंदर नजर आते हैं। इसमें जो है बच्चा जो है उसका हाई आर्च पैलेट होगा, उसका जो फेस है उसकी इलोंगेटेड अपीयरेंस है, ओपन माउथ वो होता है उसका, और उसका जो उसकी उसके जो जॉज हैं वो बाहर निकले होते हैं, जैसे इसे के हम जिसको कि हम प्रोग्नाथिज्म कहते हैं। ठीक है ना, और इसके अलावा इसमें जो दूसरे बोनी जो डिस्टर्बेंसेस होती हैं उसमें पेक्टस एक्सकवेटम है, काइफोस्कोलियोसिस है, पेस केविस है और क्लब फुट एबनॉर्मलिटीज होती हैं। फिर मायोट्यूबरल ट्यूबुलर या फिर जिसे कि हम सेंट्रो न्यूक्लियर कहते हैं, ये एक एक्स लिंक डिजीज है और ये क्रोमोसोम 28 का जो लोकस है उस पे एक जो प्रोटीन है जिसे कि मायोट्यूबुलिन कहते हैं, उसके लिए ये जो क्रोमोसोम है ये बनाता है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से ये नहीं बन सकता। ठीक है ना, तो इट कैन हैव ऑटोसोमल डोमिनेंट या रिसेसिव। सो तीनों टाइप्स हो सकती हैं, एक्स लिंक भी, ऑटोसोमल डोमिनेंट भी, ऑटोसोमल रिसेसिव। ठीक है जी, ये इसके 3 वेरिएंट्स हैं डिफरेंट।
इसकी प्रेजेंटेशन भी बर्थ पे होती है, इनको फीडिंग डिफिकल्टी होती है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, बायलैटरल टोसिस हो सकता है इन पेशेंट्स, ठीक है। सो लिमिटेड आई मूवमेंट और एब्सेंट टेंडन रिफ्लेक्सेस, सो दीज आर द फीचर्स ऑफ दिस मायोट्यूबुलर। और अर्ली चाइल्डहुड में जो इसकी प्रेजेंटेशन होती है उसमें वेडलिंग गेट होती है और हाइपर लॉर्डोटिक होते हैं। लॉर्डोटिक का मतलब बिल्कुल सीधे खड़े हुए होते हैं ये। लॉर्डोसिस इज ऑपोजिट ऑफ काइफोसिस, ठीक है जी। मसल बायोप्सी पे आपको इट शोज दी मायोन्यूक्लियाई इन द सेंटर ऑफ द मसल फाइबर। अगर आप ये देखें तो ये मसल फाइबर के पेरिफ्री में आपको न्यूक्लियस नजर आ रहे हैं, जबकि इस पेशेंट में इसकी जब आप सेंट्रोन्यूक्लियर जिसे हम कहते हैं, तो उसमें ये आप देखें तो आपको सेंटर पे के अंदर न्यूक्लियस नजर आ रहे हैं कहीं कहीं पर, ठीक है ना। दिस इज सेंट्रोन्यूक्लियस, ठीक। अच्छा, अब इन्फ्लेमेटरी जो कॉजेज हैं उसमें पॉलीमायोसाइटिस, डर्मेटोमायोसाइटिस है। यूजुअली दिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द मसल्स, ठीक है। और इसकी जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है प्रोग्रेसिव होती है, सिमेट्रिकल प्रॉक्सिमल मसल पेन, टेंडरनेस, ठीक है। और जो इसमें जो प्रेजेंटेशन है उसमें स्किन लीजन भी हो सकते हैं, जिसमें कि एरिथेमेटस स्किन लीजन, जिसे हेलियोट्रोपिक रैश कहते हैं या गॉर्टन्स रैश कहते हैं। दीज आर दी वॉलेशियस रेज स्केली रैश ओवर दी नकल्स। ये अगर आप देखें ये इसके नकल्स हैं और उस पे ये स्केली रैश नजर है और ये फेस पे इसका हेलियोट्रोपिक रैश नजर आ रहा है आपको, ठीक है। इसके साथ कार्डिक और पल्मोनरी एब्नॉर्मेलिटीज भी होती हैं, ठीक है जी। सो दिस इज दी पॉलीमायोसाइटिस एंड डर्मेटोमायोसिस। ये उसकी ट्रीटमेंट है कि इसमें हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड या इम्यूनोमॉड्यूलेटिंग एजेंट जो हैं वो यूज़ करते हैं। और इसकी जो डायग्नोसिस है उसमें आपके जो मसल एंजाइम्स हैं वो रेज होते हैं। मस्कुलर ईएमजी, एनसीएस आप कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रोमायोग्राफी जिसे कहते हैं। फिर मसल बायोप्सी पे आप देखते हैं कि आपको इन्फ्लेमेटरी सेल्स नजर आते हैं। सो दिस इज दी पॉलीमायोसाइटिस एंड डर्मेटोमायोसाइटिस। अब मेटाबॉलिक जो हैं वो बेसिकली कुछ एंजाइम्स हैं जिनके के जेनेटिक डिफेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से मेटाबॉलिक, और ये 14 टाइप्स के एंजाइम अभी तक डिटेक्ट हुए हैं जिनमें के जिनकी वजह से ये मायोपैथीज हो सकती हैं। इसमें जो मोर कॉमन हैं उसमें मायोफॉस्फोराइलेज डेफिशिएंसी, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, पीएफके डेफिशिएंसी, डिब्रांचर एंजाइम डेफिशिएंसी एंड एसिड माल्टेज डेफिशिएंसी। सो ये कुछ एंजाइम्स हैं जिनकी के डिसऑर्डर्स होते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। एंडोक्रीन में जिसका हमने बताया कि हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म, कुशिंग्स वगैरह ये सब होते हैं। इसमें कॉमन जो है वो स्टीरॉइड है, हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म है। और ये इसकी जो फीचर्स हैं इसके, इसमें आपके एंजाइम्स नॉर्मल होते हैं। मसल बायोप्सी जो है उसमें एट्रोफी होती है टाइप 2 फाइबर्स की, ठीक है। इसी तरह इसकी जो ट्रीटमेंट है वो ये होती है कि आप अंडरलाइंग जो कॉज है उसको आप ट्रीट करते हैं। अब टॉक्सिक मायोपैथी जो है इट इज़ नेक्रोटाइजिंग हो सकती है, जिसमें कि स्टैटिन्स हैं आपकी, क्लोफिब्रेट है, जैमफिब्रिजिल है। ये कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं। सो दे कैन कॉज टॉक्सिक मायो। एल्कोहल, इस तरह हाइपोक्लेमिक डायूरेटिक्स, लैक्सेटिव, एल्कोहल, एम्फोटेरिसिन बी, ये सारी की सारी हाइपोकलीमिया के थ्रू जो है वो कॉज करती हैं मायोपैथी। इसी तरह पेनिसिलामीन और इंटरफेरॉन अल्फा, ये दो ड्रग्स हैं, ये इन्फ्लेमेशन कॉज करती हैं। सो दे कॉज इन्फ्लेमेटरी मायोपैथी, ठीक है जी। माइटोकॉन्ड्रियल जो है वो सिडुआडीन एक हेपेटाइटिस बी के खिलाफ या फिर एड्स में भी ये यूज़ होती है। ये ड्रग है जो कि माइटोकॉन्ड्रियल प्रॉब्लम कॉज करती है, ठीक। इस तरह फोकल मायोपैथीज जो हैं उसमें हीरोइन है, डाइजिपॉम है, लिडोकेन है, और ये कुछ टाइप्स हैं जो कि टॉक्सिक मायोपैथी कॉज करती हैं। अब इसकी मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, आपने याद रखना है 4S अप्रोच जो है मायोपैथीज के लिए वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें फर्स्ट S इज़ फॉर स्ट्रेंथ थेरेपीज।
स्ट्रेंथ थेरेपी यानी इन पेशेंट्स को आपने अर्ली स्टेज पे फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज स्टार्ट करवा देनी है ताकि इनके मसल्स की जो वेस्टिंग है वो ना हो और टोनिंग रहे। स्पोर्टिव केयर में फॉर एग्जांपल अगर लिम गर्डल टाइप मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है तो उसमें आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को सपोर्ट करना होता है। इन पेशेंट को आपने ऑक्सीजन देना होता है या उनको असिस्टेड रेस्पिरेशन आप दे सकते हैं। ठीक है। सिम्टोमेटिक केयर ये होती है कि अगर कार्डिक इन्वॉल्वमेंट है, फॉर एग्जांपल मायोटोनिया डिस्ट्रॉफिका में हमने कहा था, तो उसमें आपने उनकी जो भी कार्डियोमायोपैथी है उसकी वजह से कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर डेवलप हो जाता है या तो आपने कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर की ट्रीटमेंट देनी है। कंडक्शन डिफेक्ट्स होते हैं तो उसमें आपने जो है वो पेसमेकर वगैरह लगा सकते हैं। कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो कि कंडक्शन के साथ इंटरफेयर करती हैं, सो आप वो ट्राई कर सकते हैं। इस तरह साइकोलॉजिकल सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पेशेंट जो है उसको पता होता है कि आई एम deteriorating day by day, so you need to have a psychosocial support for these patients. So that was all about today's lecture, and sorry there was a lot of interruption, and but still if you have any question, so just let me know. Any question? If you want to ask any question, just let me know. Okay. That is my number. So if you have any question and still if you have not understood anything, you can just call me or just message me or WhatsApp me, whatever you want on this number. Okay. So should we go? Okay. Thank you. Thank you very much.